Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Ram Ram. So here this is our without pen and paper series for CSET paper. So here the idea is like we have to solve question without wasting our time in 10 second, 15 second. That is the idea. So today I tell you one concept of time and work, and we will see like how we can solve with LCM method or like with new method. I will say time and work question rather than following school method. So now what is important here, school days might be you have seen question like A can do one work in 6 days, B can do the same work in 9 days. ठीक है जी, हिंदी मीडियम वालों के लिए ए एक कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो हमने क्या किया था स्कूल डेज में, हमने किया था 1/a प्लस 1/b मेथड. तो ये हो गया वन डे वर्क ऑफ ए. वन डे वर्क ऑफ ए इज 1/6, वन डे वर्क ऑफ बी इज 1/9. तो देन वी हैव टू सॉल्व इट. बट like here this 1/a 1/b method is not handy for miscellaneous question and we will get confused. So I don't prefer this. So if I don't prefer or we don't prefer this, it means I will give you new method and the better method where we have 3 steps. And these are easy, don't worry about this. I will take 4-5 question and we try to learn that method. Okay, like here in this you have to take this LCM 18, then you have 3 plus 2, 5/18, then you have to reverse it, 18/5 is the answer. But we will see with new method, and that is really handy for miscellaneous question. Any miscellaneous question you can easily handle with that method actually. देखो, like question is A can do one work in 6 days, B can do same work in 9 days. Here in this new method we have 3 steps. Let me take 3-4 examples so that you will be comfortable in this method. Step number 1, you can note down, that is the application of LCM. LCM stands for least common multiple. So we have to take LCM of 6 and 9. But don't write we have direct LCM. Take multiple of 6 in your mind, 6, 12, 18. And check multiple of 9, 9, 18. So 18 is multiple of 6 as well as 9. So we have to take multiple of 6 as well as 9. It is 18. So we assume work is 18 units. I already told you, let me take 2-3 example. You will be comfortable. So we assume work as 18 units. Step number 2. Step number 2 is per day work. So this is per day work of A. A can make 18 unit in 6 days. Like for example 18 chair in 6 days. It means 3 chairs per day or 3 units per day. तो A का काम हो गया 3 units per day. Now we find per day work of B. B can do this 18 unit in 9 days. So 18 divided by 9 is 2 units per day. तो B क्या कर रहा है, डेली 2 चेयर बनाएगा. A make 3 chair, B 2 chair, we take total. Together they make 5 chairs per day or 5 units per day. I repeat, rather than taking LCM after 2-3 steps, we take LCM in the very first step, so that we can avoid fraction in our calculation. Simple, 3 plus 2 is easier rather than 1/6 plus 1/9. See, our mind is very much comfortable in addition of simple natural number rather than this fraction. So 3 plus 2 5 आ गया. So now next is step number 3. Step number 3 is total work divided by per day work. Total work 18 unit and they are doing 5 units per day. This is our answer, 18/5. You find LCM, then you find per day work of A, per day work of B, then this is total work divided by per day work. Some students, they are not comfortable with units, not comfortable with chairs, so you can assume work as chocolate if you like chocolate. Or like generally what I do, I give one example, okay? Because all of you are adult, you are mature enough, and even this YouTube channel is not for kids, these are for adults only.
तो here I give you one interesting example and you will get involved and you get answer in very less time. Same question है. A can do one work in 6 days. B can do same work in 9 days. So we have to take multiple of 6 and 9. 18, smallest multiple will work. So now here you can assume work as 18 unit, 18 chair or 1 unit. But here what I do, I assume here task is to drink 18 beers. ठीक है जी. अब देखो माइंड कैसे फास्ट चलेगा, क्योंकि माइंड को आप इंटरेस्ट की चीज मिल गई. जिसको चॉकलेट पसंद वो चॉकलेट एज्यूम कर लो. तो आपका माइंड क्या करेगा, डबल एनर्जी से, डबल एफिशिएंसी से रिजल्ट निकालेगा. तो भाई ए क्या कर रहे हैं, 18 बियर 6 डेज में पी रहा है. तो ए 18 बियर इन 6 डेज मींस 3 बियर पर डे. तो ये भाई ए की एफिशिएंसी है. बी 18 बियर इन 9 डेज, डोंट टेक अदरवाइज 2 बियर पर डे. ठीक है जी. और यूपीएससी में तो सारे ही 21 प्लस ही एलिजिबल है, तो कोई चक्कर नहीं है. 23 ए की कैपेसिटी भाई 3, बी की 2, दोनों की मिलके होगी 5 बियर पर डे. चिल मार रहे हैं दोनों, पार्टी कर रहे हैं. ए ने 3, बी ने 2, दोनों ने मिलके पी 5 बियर. अब भाई टोटल टास्क था 18 बियर. अब दोनों मिलके 18 बियर 5 की कैपेसिटी से कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 18/5 डेज. तो ये है जी. अगर आप देखो 18 बियर 6 डेज में या 18 चेयर 6 डेज में, तो ये हो गया 3 बियर पर डे. और ये हो गया 18 इन 9 डेज 2 बियर पर डे. चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं. चलो राम तो नहीं लूंगा मैं, यहां पे मैंने ले लिया गोपाल. वैसे तो चलो एनीवेज, गोपाल कैन डू वन वर्क इन 10 डेज. गोविंद कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज. तो वी टेक एलसीएम ऑफ 10 and 30. तो एलसीएम ऑफ 10 and 30 इज 30 इटसेल्फ. और उसका रूल क्या है, इफ लार्जेस्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ ऑल द रिमेनिंग नंबर देन दैट इटसेल्फ इज द एलसीएम. 30 10 का मल्टीपल हो 30 एलसीएम हुआ. तो भाई आप यू कैन एज्यूम 30 यूनिट, 30 चेयर, 30 चॉकलेट या 30 बियर. पार्टी चल रही है, ठीक है. 1 महीने का या 10 दिन का 20 दिन का स्टॉक उन्होंने खरीद लिया. तो गोपाल की कैपेसिटी भाई 30 बियर इन 10 डेज मींस 3 बियर पर डे. अच्छी खासी कैपेसिटी है. गोविंद 30 बियर इन 30 डेज मींस 1 बियर पर डे. न्यू कमर, तो ग्रुप में वेलकम है जी इसका. तो भाई गोविंद और गोपाल मिलके कर रहे पार्टी, तो ये हो गया 4 बियर पर डे. तो उनको क्या करना, टोटल 30 बियर विद ए कैपेसिटी ऑफ 4 बियर पर डे. ये आंसर आ गया जी 7.5. टाइम एंड वर्क इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. चलो एक क्वेश्चन. रीटा कैन डू वन वर्क इन 6 डेज. रीना कैन डू सेम वर्k in 18 days. So we take LCM of 6 and 18. So LCM of 6 and 18 is 18 only because 18 is the multiple of 6 and 18. So we assume total work 18. हाँ जी 18 unit, 18 chair, 18 chocolate और 18 beer. Why should boys have all the fun? तो जी रीटा की कैपेसिटी क्या होगी, 18 डिवाइडेड बाय 6, 3 चॉकलेट पर डे, 3 चेयर पर डे. ठीक है जी. तो ये काम हो गया 3 यूनिट्स पर डे, 3 बियर्स पर डे. रीना 18 डिवाइडेड बाय 18, 1 बियर पर डे और 1 यूनिट पर डे. दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 3 + 1 4. आंसर आ गया जी 18/4. सिंपल. नाउ टेक योर टाइम. आई आस्क यू वन क्वेश्चन. A can do one work in 5 days. B can do same work in 20 days. फटाफट A 5 B 20. Take LCM. Then per day work of A B. Then A and B together. You get your answer. ठीक है जी. 5 and 20 LCM 20. So you assume 20 units, 20 chairs, 20 chocolate, 20 beer, whatever you like. ठीक है जी. आप हमेशा कोई भी सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है.
और मैथमेटिक्स में तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एग्जाम्पल सेट करो, मजा आ जाएगा। ए जो है जी 20 यूनिट 5 दिन में, मतलब 4 यूनिट पर डे। बी क्या कर रहा है 20 यूनिट इन 20 डेज, 1 यूनिट पर डे। दोनों मिलके 5 यूनिट पर डे। यूनिट बोलने में वैसे ही मतलब ऐसा लग रहा है भाई भारी भरकम चीज है। अब बोल दिया जी 4 बियर पर डे। बी का टास्क है 1 बियर पर डे। माइंड अपने आप काम कर रहा है जी। 4 + 1 5, 5 5 5, 20 बियर कितने दिन में खत्म, 5 के हिसाब से 4 दिन में स्टॉक खत्म, 4 डेज ओवर, देन दे नीड न्यू स्टॉक। तो ये माइंड के इंटरेस्ट की बात है जी। माइंड जहां इंटरेस्ट है आपका, चेयर में, चॉकलेट में, यूनिट में, तो यू कैन सॉल्व इट। चलो फटाफट एक क्वेश्चन और कर लो जी। A can do one work in 10 days. B can do same work in 20 days. Take your time. A and B together. और कितना फास्ट आप कर सकते हो 10 20, 20 is multiple of 10, तो 20 यूनिट्स और 20 चेयर। A 20 डिवाइडेड बाय 10 2 यूनिट, B 20 डिवाइडेड बाय 20 1 यूनिट, सीधा माइंड में 3, तो आंसर 20/3। 3-4 सेकंड से ज्यादा का काम है ही नहीं। 3 से 4 सेकंड से ज्यादा का काम है ही नहीं। अच्छा एक मिसलेनियस क्वेश्चन बता देता हूं, वेयर दिस रियली हेल्प। ए कैन डू वन वर्क इन 10 डेज, बी इन 20 डेज। ए अलोन स्टार्टेड द वर्क। इस तरह के क्वेश्चन। ए ने अकेले काम स्टार्ट किया एंड वर्क फॉर 5 डेज। ए ने 5 दिन काम किया एंड लेफ्ट द जॉब। Find in how many days B alone will complete the remaining work. I tell you 3-4 method for this question. क्वेश्चन समझ लो। ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में। ए अकेले ने 5 दिन काम किया और काम छोड़ दिया अकेले ने, तो फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ वर्क। सो हियर 10 and 20 एलसीएम 20 चॉकलेट मान ले। ठीक है जी, चॉकलेट मान लेते हैं। आपको चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट। ए 20 डिवाइडेड बाय 10 2 चॉकलेट पर डे। बी 20 डिवाइडेड बाय 20 1 चॉकलेट पर डे। तो जी ए डेली 2 चॉकलेट खाएगा, बी 1। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, पहले 5 दिन सिर्फ ए चॉकलेट खाएगा, डेली 2। तो डेली 2 5 दिन में 10 चॉकलेट खत्म। ए ने 10 चॉकलेट खा ली। सो इट रियली हेल्प इफ यू नो द पर डे वर्क। रेफ्रिजरेटर में चॉकलेट कितनी थी 20, एंड आउट ऑफ 20 ए हैज ईटन 10 चॉकलेट। ए ने 10 चॉकलेट खा ली। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग स्टॉक और रिमेनिंग वर्क। 10 चॉकलेट खत्म, बची 10। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए डेली 2 चॉकलेट, बी डेली 1 चॉकलेट। फर्स्ट डे ए 2 चॉकलेट, सेकंड डे ए 2 चॉकलेट, थर्ड डे ए 2 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 10 चॉकलेट खत्म आउट ऑफ 20, रिमेनिंग 10। हु विल ईट रिमेनिंग, बी। But what is the capacity of B? 1 chocolate per day. So 10 chocolate with the capacity of 1 chocolate per day. So B will take 10 days. Method 1. So I don't prefer 1 by A, 1 by B method. I prefer this. This is called per day work concept or LCM method. LCM तो वहां पे भी यूजर है, बट यहाँ LCM पहले स्टेप में। Second method. A can do 1 work in 10 days. B in 20 days. I take total work 100%. You can use percentage as well. So if A can do 100% work in 10 days, so what is the capacity of A? 10% per day. तो भाई साहब A daily 10% काम करेगा। B 100% work in 20 days means 5% per day. B daily करेगा 5% काम। A 10%, B 5%। तो ए ने किया 5 दिन काम, डेली 10%, तो ए विल डू 50% वर्क, हाफ वर्क ए विल डू, टोटल वर्क 100%। ए ने डेली 10 10 10 10%, 10%, 10%, 10%, 10% फॉर कैटेगरी 1 स्टूडेंट, 50% वर्क ओवर। सो आउट ऑफ 100% 50% वर्क ओवर, रिमेनिंग वर्क 50%।
हु विल डू दिस रिमेनिंग वर्क? बी। एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बी? बी को बोला भाई तू डेली 50% वर्क कर, बी बोला नहीं करूंगा, क्योंकि बी की हिम्मत क्या है डेली 5% वर्क करने की। बी बोला भाई तू कुछ कर, चाहे तू मोदी के पास जा कंप्लेंट लेके, चाहे तू सिटीजन चार्टर में जा, तू कुछ भी कर, मैं तो डेली 5% ही काम करूंगा। तो बी क्या करेगा? बचा हुआ काम करेगा 10 डेज में। वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। मेथड 2, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज मेथड। नेक्स्ट इज मेथड 3 विच इज कॉल्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड। उसको फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन फ्रैक्शन भाई बहन है। देयर इज नथिंग लाइक मच डिफरेंस ओवर देयर। एंड इन वन ऑफ द सेशन आई विल टेल यू परसेंटेज, डेसिमल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन सब भाई बहन है, सब भाई बहन है। मतलब इतना गहरा रिलेशनशिप है सब में, बताऊंगा कभी। A can do one work in 10 days, B in 20 days। काम क्या है भाई? केक। ये केक है। A पूरा केक 10 दिन में खाता है, B 20 दिन में पूरा केक। A अकेले 5 दिन काम कर रहा है, 5 डेज। भाई A पूरा केक 10 दिन में खाएगा तो ये 5 में और ये 5 में, आधा केक 5 आधा केक 5, ऐसे ही चलेगा ना। तो क्या कर रहा है ए ने? ये आधा केक 5 दिन में खा लिया ए ने, 5 डेज, हाफ केक ओवर। सो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट हियर? हाफ केक। हु विल ईट दिस हाफ केक? बी। तो बी के लिए आधा केक बचा है। सो वी कैन ईट कंप्लीट केक इन 20 डेज। पूरा काम 20 दिन में कर रहा है, तो आधा काम कितने में? 10 दिन में। सिंपल, परफेक्ट। कितनी जल्दी हो गया? बी 10 डेज फॉर रिमेनिंग वर्क। ठीक है जी, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ये हमारी WPP विदाउट पेन एंड पेपर सीरीज। मतलब ये सब कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हो। एक काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में। काम मान लिया एक केक 5 दिन, ए आधा काम, बचा आधा काम बी। पूरा काम 20 दिन में तो आधा काम 10 दिन में, तो बी विल डू रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। ओके, थैंक यू वेरी मच।